आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11.7 A 100-watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is given 589 nanometer. So, what is the energy per photon associated with the sodium light and at what rate are the photons delivered to the sphere? तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए दिया है, पावर दिया हुआ है और वेवलेंथ दी है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें भी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, दैट इज रेट. सो वी नो दैट इक्वल टू Sc upon lambda. We have given the value of H, we have given the value of C, and we have given the value of lambda. So when we will put all these values, we will get the value of energy, that equal to 3.38 into 10 to the minus 19 joule. Now again, the power is equal to energy of one photon into total number of photons. So power equal to Ne, so N equal to power upon energy. So power is given 100, E is we have calculated 3.38 into 10 to the minus 19. The answer is around 3 into 10 to the 20 photons per second. Now moving to question number 8. The threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the 14 Hertz. If light of frequency 8.2 into 10 to the 14 Hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. In this question we have given nu naught and nu, and we have to find the V naught. So nu naught is 3.3 into 10 to the 14 Hertz, nu is 8.2 into 10 to the 14 Hertz, and V naught we have to find. तो पहले तो हम इसके लिए इक्वेशन निकालें. किस इक्वेशन सॉल्व करेंगे? तो हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज E into V naught equal to maximum kinetic energy. And we know the relation of Einstein photoelectric equation, that maximum kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? That is E into V naught equal to h nu minus h nu naught. Now we have to find the value of V naught. So we can find the value of V naught equal to, यहाँ से हमने h कॉमन ले लिया तो क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट, और E साइड ले आए तो क्या है? h अपॉन E इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. नाउ हमें ये दो वैल्यू क्वेश्चन में दी हैं, ये दो वैल्यू हमें नोन है, तो वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ V naught. व्हेन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज वी विल गेट द आंसर इज V naught इक्वल टू 2.03 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. The work function for a certain metal is 4.2 electron volt. Now, will this metal give the photoelectric emission for an incident radiation of the wavelength 330 nanometer? इस क्वेश्चन में पूछा है आपके पास एक इंसिडेंट लाइट है जिसकी वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है. क्या ये इस मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करेगी जिस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो माय डियर ये कब पॉसिबल है? जब जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो कितनी हो? मेटल सरफेस की एनर्जी से ज्यादा. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी. अगर वो मेटल सरफेस की एनर्जी से ज्यादा आई तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. वी नो द वैल्यू ऑफ H, वी नो द वैल्यू ऑफ C, and the lambda is given 330 nanometers. So 330 into 10 to the minus 9. When we calculate it, so energy is come 6 into 10 to the minus 19 joule. My dear, phi is given in electron volt, energy is in joule. So either you convert electron volt in joule or joule in electron volt. So हमने इस एनर्जी को जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 to the minus 19 से डिवाइड करना होगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? 19 से 19 कैंसिल, 6 upon 1.6 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है 3.75 और मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो है 4.2. तो हम देख सकते हैं कि E इज लेस देन 5. सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल ऑकर इन दिस केस.
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी is 7.21 into 10 to the 14 Hz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 to the 5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? आपको न्यू की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है और आपको न्यू नॉट निकालना है। मतलब इसके लिए हम क्या लगाएंगे? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो हियर we know that Einstein photoelectric equation says maximum kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. अब आपके पास m known है, v की वैल्यू गिवन है, मतलब कि ये वैल्यू आपको पता है, h known है, nu की वैल्यू गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है? न्यू नॉट। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, न्यू नॉट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से h कॉमन लिया तो h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे? h यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? h को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन 2h। फिर न्यू नॉट को भी इस साइड ले जाएंगे तो न्यू नॉट इक्वल टू न्यू माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन 2h। अब आपके पास न्यू नॉट की इक्वेशन आ गई। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं तो न्यू की वैल्यू कितनी है? 7.21 इंटू 10 पावर 14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 पावर -31, v की वैल्यू दी हुई थी 6 इंटू 10 पावर 5, इसका स्क्वायर कर दिया 2 एंड h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट। व्हेन वी विल सॉल्व इट आउट वी विल गेट दिस वन एंड अगेन माइनस कब कर पाएंगे? जब पावर क्या होंगी? सेम। अगर आपकी पावर सेम नहीं है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पावर सेम करनी होगी, बट इस केस में हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। सो विल गेट द आंसर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 4.74 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11.11 कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन argon laser which is used in photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the cutoff voltage of photoelectrons is 0.38 volt. Find the work function of the material from which the emitter is made. मतलब कि हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है और वी नॉट की वैल्यू दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है? फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन वी विल गो विद दैट आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो सबसे पहले तो हमारे लिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट और वी कैन सी हियर फाई। तो क्या हमें हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू दी है? नहीं। तो फिर हम क्या जाएंगे? हमें मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू वी नॉट। क्या हमें वी नॉट की वैल्यू दी है? बिल्कुल दी है, दैट इज 0.38 वोल्ट। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन मेक द इक्वेशन that is EV naught equal to h nu minus h nu naught or EV naught equal to h nu minus phi. So we can say phi equal to h nu minus EV naught. तो phi equal to, अब आपको न्यू तो दिया नहीं है, आपको क्या दिया? लैम्डा। सो अगेन phi equal to क्या आ जाएगा? SC upon lambda minus E into V naught. Now we have all the values, so we will put the values and do the calculation. अगेन यहाँ से भी आपको सब्ट्रैक्शन में क्या देखना होगा? यहाँ भी आपको पावर को सेम करना होगा, तभी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विल गेट द आंसर 3.468 इंटू 10 माइनस 19 जूल। तो जो सर मेटल होगा जिससे एमीटर बना होगा उसका वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए? इतना। या इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 माइनस 19 वी विल गेट 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, calculate the momentum and the de Broglie wavelength of electrons accelerated through a potential difference of 56 volt. अब हमारे पास इस क्वेश्चन में केवल वोल्टेज दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे? डायरेक्टली हमने एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, तो हम उसको क्या लगाएंगे? लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। वी की वैल्यू आपको दी है 56, सो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 56। व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द आंसर 1.64 इंटू 10 माइनस 10 मीटर या 0.164 नैनोमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंटम। सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब लैम्डा आपका आ चुका है, एच आपको पता है, तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच अपॉन लैम्डा। वी विल पुट द वैल्यूज एंड वी विल फाइंड द आंसर। तो मोमेंटम इज 4.04 इंटू 10 माइनस 24 kg मीटर पर सेकेंड।